گورنر اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کا اعلان کر رہے ہیں۔ نے جو ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پالیسی ریٹ کو ایگزسٹنگ لیول کے اوپر مینٹین کریں گے، یعنی کہ ابھی جو پالیسی ریٹ جو تھا جو کہ لاسٹ ایم پی سی میں ڈیسائیڈ کیا گیا تھا 22%، تو اسی کے اوپر کمیٹی نے ڈیولپمنٹس کو بھی ریویو کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے انفلیشن سے ریلیٹڈ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہے ریسنٹلی اس کو ریویو کیا، اور خاص کر انہوں نے نوٹ کیا کہ پچھلے مہینے جون میں جو ٹوٹل ہمارا جو سی پی آئی انفلیشن ہے ایئر آن ایئر، اس میں سگنیفیکنٹ ڈکلائن ہوا، کیونکہ مئی کے مہینے میں انفلیشن جو ہے وہ 38% تھا اور وہ کم ہو کے جون کے مہینے میں 29.4% ہو گیا۔ اور اسی طرح ایوریج انفلیشن جو ہے وہ ڈیورنگ دی فسکل ایئر 2023 وہ 29.2% رہا۔ اور آپ کو یاد ہو کہ ہم پچھلے کافی مہینوں سے آلموسٹ 6 منتھ سے ہم یہ بتاتے آ رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک کی اسیسمنٹ کے مطابق اس سال کا انفلیشن جو ہے، جو سال ختم ہوا ہے 2023، اس میں 27 سے 29% رہے گا، اور اسی کے مطابق انفلیشن جو پورے سال کی ایوریج جو ہے 29.2% رہا۔ اور اگلے سال کے لیے بھی کمیٹی نے ڈسکس کیا ہے، اور اس میں ہماری جو آؤٹ لک ہے فار نیکسٹ فسکل ایئر، کیونکہ اب نیا سال شروع ہو گیا اور اس نئے مالی سال کے لیے انفلیشن کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ اس کو بھی ریویو کیا گیا، اور ہمارے جو اینالسٹ ہیں انہوں نے جو فور کاسٹ کی ہے اگلے سال کے لیے اس کو کمیٹی نے بہت تھریڈ وے ڈسکس کیا، اور اس ڈسکشن کے بعد انہوں نے ایک اگلے سال کے لیے رینج بھی ڈیسائیڈ کر دیا۔ تو اگلے سال کا جو کمیٹی نے جو ڈیسائیڈ کیا وہ انفلیشن ہمارے اسیسمنٹ کے مطابق وہ 20 سے لے کے 22% رہے گا، یعنی 20 سے 22% کے درمیان رہنے کی توقع ہے۔ اور اسی طرح کمیٹی نے یہ بھی نوٹ کیا کہ گو کہ لاسٹ منتھ میں انفلیشن 29.4% تھا، لیکن آنے والے مہینوں کے اندر یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ پہلے ہاف میں یعنی جولائی سے دسمبر کا جو ہاف ہے اس میں تھوڑا تھوڑا کم ہوگا، لیکن دوسرا ہاف جو جنوری سے جون کا ہوگا 2024 کا، اس کے اندر جو ہے وہ انفلیشن جو ہے وہ تیزی سے کم ہوگا۔ اور الٹیمیٹلی کمیٹی نے یہ بھی اسیسمنٹ کی کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے 5 to 7% تک اس انفلیشن کو لے کے آنے کا، وہ اس پہ وی آر آن ٹریک، اور انشاءاللہ یہ جب سال 2025 ختم ہونے سے پہلے یعنی تیسرے اور چوتھے کوارٹر آف 2025 کے درمیان ہمارا جو میڈیم ٹرم آؤٹ لک ہے انفلیشن کے اوپر 5 to 7%، سو انشاءاللہ مہنگائی جو ہے 5 سے 7% پہ آئے گی مالی سال 2025 کے ختم ہونے سے پہلے۔ اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی نے ایکسٹرنل سائٹ کی جو ڈیولپمنٹس ہیں، جس میں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ SLA کا سائن ہونا، اور اس کے نتیجے میں انفلوز کا آنا، اور اس کے نتیجے میں اسٹیٹ بینک کے ریزروز کا بہتر ہونا، اور ایکسچینج مارکیٹ کے اندر اسٹیبلٹی کا آنا، یہ سب چیزیں بھی کمیٹی نے ریویو کی، اور ان کے لیے یہ اطمینان کا باعث تھی کہ ان ڈیولپمنٹ کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ہمارے جو معاشی اعداد و شمار ہیں اس میں بہتری آنی شروع ہو گئی ہے تھوڑی تھوڑی، اور ساتھ ہی جو اکنامک آؤٹ لک ہے اور جو گروتھ ہے نیکسٹ ایئر کے لیے 2023-24، اس کے اوپر بھی کمیٹی نے کافی ڈسکشن کیا، اور اس ڈسکشن کے بعد کمیٹی نے اس اسیسمنٹ کو انڈورس کیا کہ اگلے سال کی گروتھ جو ہے وہ 2 سے 3% کے درمیان رہے گی، اور اس میں کچھ ظاہر رسکس بھی ہیں، کچھ ہمارے ڈومیسٹک سائڈ کی چیزیں ہیں جو جیسے ڈیولپمنٹس ہوں گی، اور کچھ ایکسٹرنل سائڈ کی ڈیولپمنٹس ہیں جس میں کہ رشیا یوکرین وار ہے، یا جو آئل پرائسز ہیں، کموڈٹی پرائسز ہیں، اور اس کے علاوہ اور ریلیٹڈ جو اکنامک ڈیولپمنٹس ہیں ان کا بھی امپیکٹ آئے گا۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس وقت جو کمیٹی نے فیل کیا کہ یہ گروتھ جو ہے ہمارے خیال میں 2 سے 3% کے درمیان اگلے سال رہے گی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بھی کمیٹی نے ریویو کیا، اور اس کے ریلیٹڈ جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو بھی ریویو کیا۔ سو اوور آل جو کمیٹی کا کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ نیکسٹ ایئر میں مہنگائی کافی کم ہوگی، اور اس کا جو ایوریج جو شرح ہے وہ 20 سے 22% کے درمیان رہے گی، اور ساتھ ہی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنی مانیٹری پالیسی کی جو اسیسمنٹ ہے اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فارورڈ لوکنگ بیسس کے اوپر جو ہے وہ ریئل انٹرسٹ ریٹس کہاں پہ رہیں گی۔
सो कमेटी ने ये असेस भी किया कि इस लेवल के ऊपर पॉलिसी रेट को मेंटेन करने के बाद हमारा रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो विल कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव गोइंग फॉरवर्ड ऑन फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस। सो ये ब्रीफली कमेटी की असेसमेंट है जो मैंने आपके सामने रखी। अब आपके अगर कोई क्वेश्चन रिलेटेड होंगे तो मोस्ट वेलकम। क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली अगर आप एक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो 2 से ज़्यादा क्वेश्चन ना पूछें, कोई एक, और अपना कमेंट जो है वो उसको महदूद रखें। सो हम जी स्टार्ट माइक ली गई जी। नाम एक्सप्रेस न्यूज़ से हूँ। सर सवाल ये कि 23 जून ने रेगुलेशन जो थी इंपोर्ट से मुतालिक वो विड्रॉ कर ली थी, तो क्या उसका जो इफेक्ट आना था वो मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब हो गया है? और एक जान हमारे अगेंस्ट और ट्रेनर रिलीज हो रहे थे, उसकी कुछ सूरत हाल बता दिएगा। करंट फिस्कल ईयर्स के अंदर जो हमारा फाइनेंसिंग का गैप होगा, फाइनेंसिंग किस तरह अरेंज होगी बता दें। सर मेरा नाम शहरियार है, मैं दुनिया टेलीविज़न से हूँ। सर आपने अभी कहा कि अगले माली साल में यानी कि नेक्स्ट जो फिस्कल ईयर शुरू होगा उसमें जो ग्रोथ है वो 2 to 3% तक रहने की तवक्को है। तो क्योंकि आप लोगों की पूरी मईशत पे बहुत गहरी नज़र होती है, तो आप क्या समझते हैं कि आने 5 to 6 या 7% की ग्रोथ पाकिस्तान किस फिस्कल ईयर में जाकर अचीव कर सकता है? और ये जो अभी करंट हमारी जो इकोनॉमिक सूरत हाल है जो काफ़ी कठिन है, ये कितने साल मजीद प्रोलॉन्ग रह सकती है? इसका आप मैं कुछ जवाब दें फिर उसके बाद। सो पहला क्वेश्चन जो था वो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड था। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने ऑलरेडी जो है वो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन सारी वो विड्रा कर ली हैं। 23 जून को हमने सर्कुलर इशू किया था जिसमें कि जो इंपोर्ट्स के ऊपर हमने पहले रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी और जिसमें पहले शुरू में हमने स्टेट बैंक से प्रायर अप्रूवल की बात की हुई थी जो कि मई 2022 के अंदर हमने इंट्रोड्यूस किया था और फिर जुलाई 2022 के अंदर उसमें कुछ फर्दर चीज़ें ऐड की गई थी। तो अप टू दिसंबर जो है वो उसमें स्टेट बैंक से प्रायर अप्रूवल रिक्वायरमेंट थी दिसंबर 2022। फिर हमने अर्ली जनवरी 2023 के अंदर उन इंस्ट्रक्शंस को रिवाइज किया था और उसमें हमने कहा था बैंक्स के लिए एक गाइडेंस दी थी और उस गाइडेंस के मुताबिक बैंक्स को प्रायोरिटी सेक्टर्स को जो है वो ज़्यादा फोकस करना था और जिसमें कि ऑयल रिलेटेड फ्यूल रिलेटेड इंपोर्ट्स हैं या उसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें थी। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल था, फूड रिलेटेड आइटम से। तो इनके ऊपर बैंक्स ने ज़्यादा फोकस करना था और उसके बाद फिर बाकी चीज़ों की इंपोर्ट्स करनी थी। तो हमने उसको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के अंदर कैटेगराइज कर दिया था। तो ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो जनवरी 2023 से जून 2023 तक जो है वो कंटिन्यू की और 23 जून को, जैसे आपने कहा, 23 जून को हमने एक सर्कुलर इशू किया जिसके तहत हमने ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस जो है वो विड्रॉ कर ली। उससे पहले अगर आपको याद हो तो हमारी इससे रिलेटेड जो और इंस्ट्रक्शंस थी वो ये थी कि कुछ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स थी कि कोई भी एलसी अगर ओपन होती है तो उसके लिए रिक्वायर्ड था कि बैंक्स के पास इंपोर्टर जो है वो मार्जिन लिखवाएगा और वो मार्जिन जो है वो 100% तक भी था काफ़ी सारे आइटम्स के अंदर। तो वो इंस्ट्रक्शंस हमने पहले ही विड्रॉ कर ली थी। तो इन अदर वर्ड्स इस वक्त इंपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी हमारी रिस्ट्रिक्शंस थी वो स्टेट बैंक ने विड्रॉ कर ली है। नाउ इट इज़ बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर। कस्टमर बैंक के पास जाता है और बैंक को अपनी रिक्वायरमेंट देता है और कस्टमर के लिए वो रिस्क अगर एक्सेप्टेबल, बैंक के लिए अगर वो कस्टमर एक्सेप्टेबल रिस्क है और बैंक उसके कस्टमर के ऊपर एक्सपोजर लेना चाहता है तो वो ले सकता है। उसमें स्टेट बैंक से कोई फर्दर कंसल्टेशन नहीं रिक्वायर्ड। उसमें बैंक अपनी पोजीशन देखेगा, अपनी क्रेडिट पॉलिसी को देखेगा, अपना रिस्क एपिटाइट देखेगा और उस एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ अभी कितना एक्सपोजर उसने ऑलरेडी लिया हुआ है उसको देखेगा और फिर उसकी लाइट में बैंक कस्टमर को उसने ये फर्दर फैसिलिटेशन अलाउ करनी है या नहीं करनी। तो इन केस एक बैंक नहीं करता तो कस्टमर दूसरे बैंक के पास भी जा सकता है। तो लेकिन
जहाँ तक स्टेट बैंक का सवाल है तो स्टेट बैंक ने इंपोर्ट रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन जो है वो सारी विड्रा कर ली। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था एफएक्स रिजर्व से रिलेटेड, तो आपको याद है कि हमारे पास जुलाई के महीने में पोस्ट एसएलए एग्रीमेंट जो है वो काफ़ी सारे इनफ्लोज आए। हमारे रिजर्व जो 4.5 बिलियन पे थे शुरू में, जुलाई के शुरू में, तो वो उसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है और 4.2 बिलियन के जो एडिशनल इनफ्लोज हमारे पास आए हैं, जिसमें 1.2 बिलियन जो हमारे पास आईएमएफ से जो ट्रांच आई थी, इसके अलावा 2 बिलियन जो है वो हमारे पास एक बायलैटरल फ्रेंडली कंट्री से आया और 1 बिलियन एक दूसरे कंट्री से आया। तो टोटल 4.2 बिलियन के हमारे पास एडिशनल इनफ्लोज आए हैं और जिसके बाद हमारे रिजर्व जो है वो 8.7 बिलियन पे चले गए थे। तो उसके साथ साथ हमारी जो एक्सटर्नल डेट पेमेंट्स जो ड्यू हो रही थी वो भी हम उनको डेट सर्विसिंग भी करते रहे। आपको पता है कि काफ़ी सारा हमारा डेट जो है वो जुलाई में ड्यू था, तो उस डेट को भी हमने पूरा रीपे किया है और उसमें टोटल कोई अराउंड 1.8 बिलियन की डेट सर्विसिंग हमने जुलाई के महीने में की है, जिसमें के 300 मिलियन के करीब प्रिंसिपल था और 1.5 बिलियन के करीब जो है वो 300 मिलियन इंटरेस्ट था और 1.5 बिलियन जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट था। तो टोटल 1.8 बिलियन की डेट सर्विसिंग की है जुलाई में। तो इस डेट सर्विसिंग के बावजूद हमारे रिजर्व में इस वक्त जो डिक्लाइन आया वो 500 बिलियन का है। तो इस वक्त हमारे पास 8.2 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने सारी अपनी जो 1.8 के करीब जो जुलाई की डेट सर्विसिंग करनी थी वो सारे के सारे उस डेट को हमने सेटल कर लिया। सो गोइंग फॉरवर्ड जो हमारे रिजर्व्स में आपको पता है कि इट विल डिपेंड ऑन दी इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। आउटफ्लोज हमें पहले से पता है कि हमारे पास जो रीपेमेंट्स आनी है और उनको हमने सर्विस करना है, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो रोल ओवर हो जाएंगे, कुछ जो है वो मेरी पे करते हैं। साथ साथ हमने इनफ्लोज के मुख्तलिफ सोर्सेज भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो इंटीमेट किए हुए हैं, गवर्नमेंट भी अपने मुख्तलिफ सोर्सेज के साथ इन कोऑर्डिनेशन वो एक्सप्लोर कर रहे हैं जहाँ जहाँ से इनफ्लोज आने हैं और उनको एक्सपीडाइट कर रहे हैं। सो उन इनफ्लोज और आउटफ्लोज को अकाउंट फॉर करने के बाद हमारे रिजर्व्स में इंशाल्लाह सिग्निफिकेंट इजाफा होगा, कमी नहीं आएगी। तो हमारा ख्याल ये है कि दिसंबर में हमारे रिजर्व्स इससे बेहतर होंगे और जून में उससे बेहतर होंगे। सो ये हम सारी डेट सर्विसिंग भी साथ साथ जो है वो ऑन टाइम करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन था ग्रोथ के ऊपर, तो हमारा ग्रोथ जो है वो ये कमेटी की असेसमेंट है, स्टेट बैंक की ऑब्वियसली टीम ने सारा उनको इनपुट दिया, डाटा प्रोवाइड किया, तो उसमें 2 to 3% की ग्रोथ फोरकास्ट की गई है और नेक्स्ट ईयर इससे बेहतर होगा और उससे आगे डिपेंड करता है कि कैसी हमारी जो है वो इकोनॉमिक साइड की डेवलपमेंट्स होती हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम एक्सटर्नल साइड के जो हमारे इश्यूज़ हैं उनको सक्सेसफुली पूरी तरह मैनेज करते हैं और उसमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आती है तो ग्रोथ का मोमेंटम जो है वो ना सिर्फ कंटिन्यू रहेगा बल्कि इसमें इजाफा होगा। और हमारा यही फोकस है कि हम अपने ग्रोथ को जो है वो मेंटेन रखें और उसमें इजाफा करें, लेकिन एट द सेम टाइम हमें इनफ्लोज आउटफ्लोज और एक्सटर्नल साइड की डेवलपमेंट्स को भी देखना है। साथ साथ इन्फ्लेशन जो हमारा इस वक्त जो आपको पता है कि पहले तो रिसेंटली बहुत हाई लेवल पे था, अब डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, तो इसमें भी हमें इसके ऊपर भी फोकस रखना है ताकि ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल हो। हमारा ज़्यादा फोकस ये है कि ग्रोथ का लेवल जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, ना कि पास में जैसे हम 1-2 साल बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं फिर उसके बाद बहुत स्लो डाउन आ जाता है और हमारी इकानमी इतनी हीट अप होती है कि हमें फिर जो है उसको स्लो करने के लिए मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रोथ में सस्टेनेबिलिटी हो, उसकी जो कंटिन्यूटी है उसको हम बरकरार रखें और उसके लिए जो एक्शंस रिक्वायर्ड हैं वो हम मॉनेटरी पॉलिसी साइड से अगर रिक्वायर्ड है तो वो लें, फिस्कल साइड से रिक्वायर्ड है तो वो लें, ताकि हमारी कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार रह सके। साहब ये बताइएगा कि लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ डिस्कशन हुआ था कुछ बैंक्स के हवाले से कि डॉलर मैनिपुलेशन पे। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि अब आपने कहा कि स्टेट बैंक की जानिब से जो है वो इंपोर्ट पर पाबंदी ख़त्म कर दी गई है, अब ये कस्टमर और बैंक के दरमियान मामला हैं। तो जिन बैंकों पर स्टेट बैंक पहले कुछ नहीं कर सकी उनको आपने इतना बाख्तियार कर दिया है कि जो बिजनेसमैन है वो धक्के खाने पर मजबूर हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन, चाहे वो फेडरेशन हो, चैम्बर हो या बड़े बिजनेसमैन हो, वो इस बात पर रो रहे होते हैं कि उनको जो है वो चीज़ें नहीं क्लियर होती, जो इम्पोर्ट के हवाले से लोग अच्छे हैं उनके हवाले से जो है वो उनकी बेहतर
की हवाले से सर आए है, तो क्या ये हुकूमत ने आज जाते हुए जो है वो जान छुड़ाने वाला काम किया है कि स्टेट बैंक को जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बढ़ानी पड़ी है? ये कोई पॉलिटिकल फैसला है? क्योंकि सब तो बाहर उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि आज भी शरह सूद में इजाफा होगा। बिलाल एहसन है, मेट्रो वन टीवी चैनल से। सर एक बात बताइए कि ये जो डॉलर्स के रेट्स के थे कि आपने पहले भी कहा था कि ओपन मार्केट बैंक में 1.5% का जो है डिफरेंस होगा, लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि इंटर बैंक में जो और ओपन मार्केट में डॉलर में जो फ़र्क आ रहा है वो तकरीबन 4 से 5 या 3 से 4 रुपये का फ़र्क आ रहा है। इसके अलावा ये है कि ये जो आपने फैसला किया है कि मनी एक्सचेंजेस से कि आपने निजी मनी एक्सचेंजेस को ये इजाज़त दी है कि वो दुबई से जो है वो या बाहर से जो है वो डॉलर को जो है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं, तो इसका क्या इम्पेक्ट क्या पड़ेगा? क्या आप समझते हैं कि इससे क्या पाकिस्तान अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज में इसमें जो है वो कोई स्टेबिलिटी आएगी, या फिर ये कि ये भी कोई सट्टे वाली कहानी होगी कि 1 साल के बाद पता चला कि जनाब उसने ये फ़ायदा उठा लिया और फर्क ने ये फ़ायदा उठा लिया, एक इंक्वायरी कमेटी बनाओ और देखो किसने कितने डॉलर मंगाए? तो मतलब ये कि क्या है सूरत हाल है ये। और दूसरी बात सर एक होता है कि हमें तो मुस्लिम मुल्क हमें शर्म आनी चाहिए कि हम सूद पे बात करते हैं कि कितने फीसद सूद बढ़ेगा और कितने फीसद सूद नीचे आएगा, शर्म है हमारे लिए। लेकिन बात वो ये है कि क्या स्टेट बैंक ने एक मतलब स्टेटमेंट दिया था कि बिला सूदी जो मईशत है उसकी जानिब हम क्या बढ़ेंगे, या उस पर कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? थैंक यू। नहीं बस इस पे मैं एक एक करके ज़रा बताता हूँ। पहले जो डॉलर से रिलेटेड जो रेट से रिलेटेड और इम्पोर्टर्स के प्रॉब्लम्स, सो देखें पहले इसके एक तो बात ये बहुत क्लियर है कि बैंक्स जो है वो अपनी मार्केट पोजीशन को देखते हुए कस्टमर को चार्ज करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कस्टमर को बिल्कुल जो है वो बैंक के रहमो करम पे छोड़ दिया जाए। तो उसके अंदर एक रीज़नेबल उनको जो है वो स्प्रेड जो है वो मेंटेन करना होता है, और उसी के ऊपर हमारा फोकस है। बैंक्स के साथ जो हम डिस्कशन भी करते रहते हैं कि उनका, क्योंकि बैंक जो है वो रिस्क ले रहा होता है और इस रिस्क का एक उनको जो है वो प्रीमियम चार्ज करना होता है, बट वो प्रीमियम मार्केट नाम के मुताबिक होना चाहिए, विद इन रीजनेबल रहना चाहिए। तो मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट का मतलब ही ये है कि जो चीज़ें जो डेवलपमेंट्स हो रही हो मार्केट से अलाइंड हो, कोई आउट ऑफ द मार्केट बहुत चीज़ें वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो होगा तो इसका मतलब है कि उसमें स्पेकुलेशन का एलिमेंट है और वो उसको हम फिर जो है वो नहीं होने देंगे। लेकिन अगर मार्केट नाम के मुताबिक चीज़ें चल रही हैं तो देन ये इससे बेसिकली है मार्केट जो डेवलपमेंट्स उसी को अकाउंट फॉर करते हुए वो चीज़ों को आगे बैंक लेके चलते हैं। जो पॉलिसी रेट की बात है तो देखें, जो IMF रिलेटेड बात की गई है तो IMF ने किसी जगह पे ये नहीं कहा हुआ कि पॉलिसी रेट इंक्रीज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस जो है वो अग्रेसिव रहेगा और हम अग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस को मेंटेन करके चलेंगे। और इसीलिए अगर आप देखें कि हमारी जो इस वक्त जो पॉलिसी रेट है, हम उसको जब उसकी असेसमेंट करते हैं और उसकी फ्यूचर डायरेक्शन को डिसाइड करती है कमेटी, तो उसमें वो ये देखती है कि फ्यूचर जो है वो मार्केट की डेवलपमेंट्स क्या होने जा रही हैं और उसके साथ साथ जो है वो इन्फ्लेशन का आउटलुक क्या है। और ये एक डाटा ड्रिवन अप्रोच है जिसमें कि हम एक्सटर्नल सेक्टर के रिलेटेड डेवलपमेंट्स जो है उसको भी देखते हैं, इन्फ्लेशन और मॉनेटरी रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स होती हैं उसको भी देखते हैं, और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस जो है वो कंज्यूमर्स हमारे और बिजनेसेस जो है वो क्या सोचते हैं उसको भी देखते हैं। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद मॉनेटरी स्टांस जो है वो कमेटी उसके ऊपर फैसला करती है। और आज की मीटिंग में कमेटी ने ये सब चीज़ें रिव्यू की और उसके बाद उसने ये डिसाइड किया कि फ़िलहाल जो हमारा मॉनेटरी स्टांस है और एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी रेट है वो अलाइंड है विद द मार्केट फंडामेंटल्स, और हमारा स्टांस इस रेट पे ऊपर भी अग्रेसिव मॉनेटरी स्टांस है। अगर हम उसको कट करने की बात करते हैं तो वो शायद लूजनिंग ऑफ मॉनेटरी स्टांस होता है, बट क्योंकि हमने मेंटेन किया हुआ है और इट इज़ ऑलरेडी एट ए वेरी हाई लेवल ऑफ 22%, और उसमें सब जो मॉनेटरी पॉलिसी और उससे रिलेटेड जो रिस्क हैं उनको कैप्चर किया गया है। और उसके साथ साथ जो है वो कमेटी ने अभी जो रिसेंट फॉर इंस्टेंस फिस्कल साइड की या एनर्जी साइड के रिलेटेड जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए उसको भी असेस किया और उसका इम्पैक्ट भी असेस किया, और उसके बाद कमेटी ने डिसाइड किया कि इस लेवल के ऊपर रेट मेंटेन करके भी स्टिल फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे हमारा जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो पॉजिटिव रहेगा, तो उन्होंने उसके ऊपर इसको मेंटेन करने का फैसला किया। जो
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था गैप बिटवीन दी ओपन मार्केट एंड इंटरबैंक मार्केट. सो वो 1.25% जो है वो हमने एग्री किया हुआ है इस SLA में जो हमने अभी रिसेंटली IMF के साथ साइन किया, और उसको हम बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं, और वी आर इंश्योरिंग के इस रिक्वायरमेंट को हम कंप्लाई करें. इसके साथ साथ हम जितनी भी दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमने एग्रीमेंट किया है IMF के साथ, उनकी कंप्लायंस के ऊपर भी हमारा पूरा फोकस है, और स्टेट बैंक की तरफ से इंशाल्लाह वी विल इंश्योर के जो कमिटमेंट्स हमने इंटरनेशनली की है उनके ऊपर हम पूरा उतरें और उन सब रिक्वायरमेंट्स को मीट करें. तो इसमें भी इंशाल्लाह वी विल बी टेकिंग ऑल द रिक्वायर्ड एक्शंस टू कंप्लीट दिस रिक्वायरमेंट. जो लास्ट शरिया रिलेटेड बात है तो उसमें जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि हमने एक हाई लेवल की स्टीयरिंग कमेटी बनाई हुई है जिसमें स्टेट बैंक के मेंबरान भी हैं, उसके अलावा एक्सटर्नल हमारे जो शरिया स्कॉलर्स हैं, और इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ और सेक्टर्स से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड और दूसरे सेक्टर से रिलेटेड हमने उसमें मेंबर्स लिए हुए हैं. तो वो इसमें मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर डिस्कशन कर रही है. उसमें हमने 6 वर्क स्ट्रीम्स जो है वर्किंग ग्रुप्स बनाए हुए हैं जो कि मुख्तलिफ एरियाज़ के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं. उसमें नया स्कूल इशुएंस की भी बात है, उसमें जो नए प्रोडक्ट्स लेके आने की बात है, शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट्स, उसमें उसके ऊपर भी काम हो रहा है. और इसके साथ साथ जो हमारे फिजिकल डेट है उससे रिलेटेड चीज़ें जो हमें क्या करने की ज़रूरत है, तो और साथ रेगुलेटरी साइड से हमारे इस्लामिक बैंक्स जो है उनके लिए रेगुलेटरी अगर कोई चेंजेस करनी है तो उसके ऊपर भी फोकस, तो वो उस पर काम बिल्कुल चल रहा है. और साथ साथ हम उसको रिव्यू करते रहते हैं उस स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग्स के ज़रिए. अभी भी हमारी करीब एक और मीटिंग उसमें होने जा रही है, और उसमें अभी तक पिछले 4-6 हफ्ते के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको हम रिव्यू करेंगे, और उसकी लाइट में जो है वो मुख्तलिफ हम फैसले करेंगे ताकि वो काम चलता रहे. और अगर आप देखें कि इस वक्त जो इस्लामिक बैंकिंग का कंट्रीब्यूशन इन टोटल बैंकिंग एसेट्स देख लें, डिपॉजिट्स देख लें, तो उसमें ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है. और उसकी रीज़न यही है कि मार्केट जो है वो समझती है कि इसमें बहुत सारी डिमांड है इन प्रोडक्ट्स के लिए, और उन डिमांड्स को मीट करने के लिए बैंकिंग सेक्टर को अपना रोल प्ले करना है. सो इट्स ए मार्केट ड्रिवन मैकेनिज्म जहाँ पे कि बैंक्स उस डिमांड के लिए जो को मीट करने के लिए, क्योंकि कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट्स में डील करना चाहते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए बैंक्स जो है वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो है वो लेके आ रहे हैं. तो ये उसके अंदर हम इसमें बिल्कुल, मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि हम कोई फोर्स करने वाली अप्रोच अडॉप्ट नहीं करना चाहते. तो ये हमने इसको मार्केट में मैकेनिज्म के साथ साथ लेके चलना है, और इसमें जो रेगुलेटरी साइड की जो सपोर्ट रिक्वायर्ड है और जो सिलेक्शन रिक्वायर्ड है वो स्टेट बैंक इसमें प्रोवाइड कर रहा है, और इसको हम इसको इसी तरह आगे लेके चलेंगे, और इसमें आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में मज़ीद इसमें बेहतरी आएगी. जी, ये 5 साल का प्रोजेक्ट है, आपको पता है, और उसमें बिल्कुल उसके साथ साथ वो हम बिल्कुल उसके ऊपर जो है वो लेके चल रहे हैं उसको. कराची में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. गवर्नर स्टेट बैंक अहमद ने नई मालियाती पॉलिसी का ऐलान कर दिया है. उनका कहना है कि स्टेट बैंक ने शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया है. शरह सूद अगले 2 माह के लिए 22% तक बरकरार रखने का फैसला किया गया है. अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए.